وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ جناب ارشد فیروز صاحب۔ بہت شکریہ نعمان قیصر صاحب، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شمس اقبال صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے یاد کیا۔ آج جو یہاں پہ مقالہ پڑھا گیا اس میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے ساری باتیں بتائی اور کافی کچھ جن سے ہم لوگوں کو معلومات حاصل ہوا، اس لیے ایسے لگتا ہے کہ اب اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی اب ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو شرکائے بحث تھے اس میں جناب اشرف بستوی صاحب اور جناب قمر اعظم صدیقی صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، جس سے ہم لوگوں کو بھی کافی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ مجھے خاص طور سے کہا گیا تھا کہ اردو اور ڈیجیٹل لائبریری کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی جائیں یا کہی جائیں، تو میں سب سے پہلے اردو زبان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے۔ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں تہذیب بھی ہے، معلومات بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سائنس اور جغرافیہ بھی ہے، قانون اور صحافت کی کتابیں بھی ہیں۔ اردو ادب کا وقار پوری دنیا میں بلند ہے۔ اس کی شاعری، ناول نگاری، تنقید نگاری، افسانہ نگاری مختلف اصناف ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اردو شاعری کی خوبصورتی، اس کے اشعار ایسے ہیں کہ کافی بڑی اور پرمانی بات ایک شعر میں کہی جا سکتی ہے۔ مثلا بشیر بدر صاحب کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اردو کی خوبی ہے کہ کتنی چھوٹے سے الفاظ میں کتنی بڑی بات کہی جا سکتی ہے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ اس کے لیے نہ تو کچھ لکھنا کی ضرورت ہے، کوئی بڑا پیج لکھنے کا کچھ نہیں، بس ایک شعر میں آپ ساری بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ خوبی اردو میں ہی ہے۔ یہ جو خوبی ہے یہ اردو زبان کا ایک کمال ہے۔ اردو محبت کی زبان ہے، علم و دانش کی زبان ہے، اردو ادب۔ اردو زبان کی خصوصیت رہی ہے کہ زبان کی تخلیقوں کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرایا گیا ہے، اسی طرح دوسری زبانوں کی تخلیقوں کو اردو میں بھی ترجمہ کرایا گیا ہے۔ کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس سے متعلق معلومات اردو میں موجود نہیں۔ ادب، اب میں کتابوں کی اہمیت، اس کی خوبصورتی، اس کے خوبصورت احساس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی مجھے بات کرنی ہے ڈیجیٹل لائبریری کے بارے میں، اس لیے پہلے میں کتابوں کی اہمیت پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ کتابوں کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے۔ کتابیں کھولنا، کتابیں پڑھنا، کتابوں سے معلومات حاصل کرنا، کتابوں کے ساتھ خوبصورت لمحہ گزارنا، جاڑے کی دھوپ میں کھلے چھت پر یا بالکنی میں کتابیں کھولنا، کتابیں پڑھنا، برسات کے موسم میں کتابیں کھولنا، جاڑے کے موسم میں لحاف میں یا کمبل اوڑھ کر کتابوں کا مطالعہ کرنا، گرمی کی شام یا رات کو کھلے چھت پر دھیمی روشنی میں کتابیں پڑھنا، یہ خوبصورت لمحات دھیرے دھیرے کم محسوس کیے جانے لگے ہیں۔ زندگی تیز رفتار سے چلنے لگی ہے، سبھی کے ہاتھ میں الیکٹرانک گیجٹس آ گئے ہیں۔ گوگل، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، ای میل، تھریڈس ایپ وغیرہ موجود ہیں۔ اپنی پسندیدہ ٹاپک کو کتابوں کے بجائے ان ایپس کے ذریعہ کھوجنا زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ کسی خاص مضمون کو پڑھنے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کتابوں کے ورق پلٹے جاتے ہیں، جس وجہ کر اس خاص مضمون یا معلومات تک پہنچنے کے پہلے یا بعد میں کئی ایسی باتیں، کئی ایسے مضامین نظر سے گزرتے ہیں جسے جانے انجانے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، جس سے معلومات اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ساری زبانوں کی کتابوں کے لیے یہ بات درست ہے کہ کتابوں کا کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ بڑی بڑی لائبریری میں بھی طلباء، قاری کسی خاص موضوع یا مضمون کو تلاش کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسے میں کتابوں کے علاوہ انہیں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل لائبریری، ڈیجیٹل کتابوں کا سہارا لینے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں ڈیجیٹل لائبریری کی اہمیت بڑھی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ کتابوں کے بارے میں گلزار صاحب کی نظم کا حصہ ہے۔ گلزار صاحب کہتے ہیں، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہے کمپیوٹر کے پردے پر۔ میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ کمپیوٹر کتابوں کی جگہ لے رہا ہے، اب ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس لیے انڈیا کو بھی ڈیجیٹل ہونا ہوگا۔ اب بھارت میں بھی ڈیجیٹل پیمنٹ، کیش لیس ٹرانزیکشن کا ماحول بن چکا ہے۔
अब ठेले पर सब्जी, पानी पूरी, पाव भाजी, लिट्टी चोखा बेचने वाले चाय पान की छोटी मोटी गुमटी में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेन देन किया जा रहा है। हर आदमी के पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी मौजूद है। ऐसे में विकसित भारत के मिशन में उर्दू तबका को भी आगे आना होगा, आगे की सोच इख्तियार करनी होगी। इस मिशन में कंधे से कंधे मिलाने के लिए उर्दू की नायाब किताबों को मंजर आम पर लाना होगा, क्योंकि भारत में लाताब जुबानें मौजूद हैं जो कि लिखी पढ़ी और बोली जाती है, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ऐसी ज़ुबान है जो कि हर एक सूबा में कमोबेश बोली और समझी जाती है। इसके अलावा दीगर ज़ुबानें हैं जो कि सूबाई ज़ुबानें हो सकती हैं, किसी ख़ास ज़िले की ज़ुबान हो सकती है। ऐसे में उर्दू अदब का दायरा जो वसी है उसे और भी वसी बनाना होगा, वसी करना होगा। इसके लिए बेहतर रास्ता है कि किताबों को जो कि मालूमात का ज़ख़ीरा है आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जाए। किसी भी ज़बान, कल्चर, माहौल, समाज को आगे की जानिब देखना ही चाहिए ताकि पुरानी रवायत कायम भी रहे लेकिन उनकी राह की रुकावट ना बने। आज डिजिटल लाइब्रेरी भी वक्त की ज़रूरत बन गई है। हर एक ज़बान को डिजिटल लाइब्रेरी की जानिब तवज्जो देना पड़ रहा है। सबसे पहली बात अगर कहूँ तो लाइब्रेरी की अहमियत के बारे में गौर करना होगा। किसी भी शख्स या तालिब इल्म को मालूमात हासिल करने के लिए ढेरों किताबों की ज़रूरत होती है। किसी के लिए ये आसानी से मुमकिन नहीं है कि हर एक किताब को खरीद कर पढ़ा जा सके। ऐसे हालात में समाज में लाइब्रेरी को अपनी खास अहमियत है, क्योंकि आम इंसान ना तो पसंद की हर एक किताब खरीद सकता है ना ही रख सकता है। तलबा और तालबात या दीगर कारी अपनी पसंद की किताब के लिए मुताला के लिए लाइब्रेरी की तरफ रजू करते हैं। अगर लाइब्रेरी दस्तयाब हो तो उससे बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। कारी किताब निकालते हैं, पढ़ते हैं, वापस ले जाते हैं, मगर डिजिटल लाइब्रेरी के वजूद में आ जाने से तलबा और तालबा कारीन को काफ़ी ज़्यादा सहूलत मुयसर हो गई है। अब उन्हें जिस भी मौजू पर इल्म लेना होता है उंगली के क्लिक से सामने आ जाता है और मालूमात हासिल कर ली जाती है। अब उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी की भी कमी नहीं है। मुख्तलिफ सतह पर उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी कायम करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू एक ऐसी प्यारी और मालूमाती भारतीय ज़बान है जो कि इल्म का ज़ख़ीरा है। विकसित भारत 2047 का एक विज़न है जो कि भारत सरकार ने हम सब के सामने रखा है, जिसकी जो भी जिम्मेदारी हो उसे एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ाना है। इस नज़रिया से भी आगे की जानिब देखते हुए धीरे धीरे तरक्की पसंद ओहदेदारान और आशिकान उर्दू ने यह महसूस किया कि अगर तालिब इल्म, कारी, उस्ताद और प्रोफेसरान को डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी की सहूलत फराहम कराई जाएगी तो ये उर्दू वालों और समाज के लिए बड़ी खिदमत होगी। इसी का नतीजा है कि आज कई ऐसी तंजीमें हैं जो कि पूरी संजीदगी से जानिब काम कर रही है। यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरी को भी डिजिटल कराए जाने की मुहिम चल रही है। इसके अलावा भारत सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया मुख्तलिफ भारतीय ज़बानों में तख्लीक़ात को यकजा कर रही है और डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म पर आम कारीन के लिए मुहैया करा रही है। NDLI सभी ज़बानों की किताबों पर काम कर रही है जिसमें उर्दू भी शामिल है। इस तरह उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी का काम हो रहा है। रेख्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार उर्दू ज़बान और अदब पर काम कर रहा है। रेख्ता एक ऐसी तंजीम है जो उर्दू ज़बान की शायरी, अदब और मुख्तलिफ मज़ामीन नुक्ता नज़र की किताबों को यकजा कर रहा है और इन किताबों को ऑनलाइन दस्तियाब कराने में अहम किरदार अदा कर रहा है। धीरे धीरे रेख्ता एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ से उर्दू की किसी किताब, नज़्म, गज़ल, मजमून या नावल को डिजिटल शक्ल में देखा पढ़ा जा सकता है। NCPUL कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान जो कि सीधे तौर पर हुकूमत हिंद के महकमे तालीम के ज़ेर इंतज़ाम है, जिनकी उर्दू के तई बड़ी ज़िम्मेदारी है, वहाँ बड़ी हुस्न उसलूबी से उन जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ ऑनलाइन उर्दू सीखने का नज़्म है, अदारा से रसाले शाये किए जाते हैं और इस काउंसिल के ज़रिए उर्दू ई लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम किया गया है। वक्त और हालात के मद्देनज़र तरक्की पसंद तहरीक के तौर पर NCPUL के ज़रिए डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम करना एक नहायत ही फ़ाल और तामीरी कदम है। और डिजिटल लाइब्रेरी के अमल में आने से बहुत का एक फ़ायदा ये है, डिजिटल या ऑनलाइन लाइब्रेरी के ज़रिए लोग कहीं भी और कभी भी उर्दू की किताबें, मजमून या दीगर मवाद हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड या प्रिंट करा सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के अमल में आने से बहुत पुरानी और खस्ता किताबों, रसालों को बार बार निकालने और छूने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। इस तरह उसके ज़ाय होने या वक्त के फटने का अंदेशा कम हो जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी के सहारे कीमती और कदीम किताबें और नहायत कारामद किताबों को नुकसान से बचाया जा सकता है। किताबों को महफूज रखा जा सकता है।
डिजिटल लाइब्रेरी उन लोगों के लिए निहायत मुफीद है जो लाइब्रेरी तक पहुंच पाने में परेशानी या रुकावट महसूस करते हैं। सूबे बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान की हैसियत हासिल है। बिहार में सभी सरकारी दफातर में हिंदी के साथ ही उर्दू में भी बोर्ड और नाम की तख्ती और दीगर ज़रूरी मालूमात लिखने की हिदायत है। उर्दू में दरख्वास्त मिलने उस पर कार्रवाई करने का इंतज़ाम है, जिस पर बिहार में अमल किया जा रहा है। सूबे बिहार में मुकम्मल तालीम के ज़िले इंतज़ाम गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी पटना, जो कि सन 1938 ईस्वी से कायम है। इस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ ज़ुबानों की 40,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। यहाँ भी ये महसूस किया गया कि वक्त, हालात और तालीम की सहूलत और इस लाइब्रेरी के कालीन के दायरे और हल्का को बढ़ाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का काम किया जाए। इस सिलसिले में गौर खौस के बाद गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी पटना ने भी ई लाइब्रेरी कायम कराने की कवायद शुरू की है। सबसे पहले स्कैनिंग का काम शुरू किया गया। लाइब्रेरी ने महसूस किया कि स्कैनिंग के साथ साथ जैसे जैसे काम होता जाए उसे आम कालीन के लिए डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पर वेबसाइट पर जारी कर दिया जाए। इस तरह गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी ने एक साथ स्कैनिंग और अपने वेबसाइट पर अपलोड करने का भी काम शुरू कर दिया है, जो कि विकसित भारत 2047 के विजन की जानिब एक छोटा कदम है। हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार के इरादा मंशा के साथ चला जाए और सरकार की सोच और सरकारी हुक्मनामे की इज्जत की जाए और उर्दू डिजिटल लाइब्रेरी की जानिब क़याम की जानिब खुश आइंद कदम बढ़ाया जाए। शुक्रिया।